सम्मत्तपडीणिबद्धं मिच्छतं जिणवरेहिं परिकहीः कहीयं तस्सोदयेन जीवो मिच्छादिठी तीणादवो अण्णाणस्य पडीणिबद्धं अण्णाणं जिणवरेहिं परिकाहीयं तस्सोदयेन जीवो अण्णाणि होदीणादवो चारित्रपडीणिबद्धं कसायं जीणवरेहि परिकहीयं तस्सोदयेन जीवो अचरितो होदी नादवो सम्यकत्व प्रतिनिबद्धं निर्मिथ्यात्वं जिनवरेहि परिकथितं तस्योदयेन जीवो मिथ्यादृष्टिः रीति ज्ञातव्यः ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धम् अज्ञानं जिनवरे परिकथितं तस्योदयेन जीवो अज्ञानी भवति ज्ञातव्यः चारित्र प्रतिनिबद्ध कषायो जिनवरे परिकथित तस्योदयेन जीवो चारित्रो भवति ज्ञातव्यः। ये गाथा कह रही है कर्म मोक्ष का कारण और उसके मिथ्यात्वादी भाव स्वरूप के रूप में है, ऐसा बताया गया है। कर्म मोक्ष के कारण का तिरोधायी भाव स्वरूप है। कर्म मोक्ष के कारण का तिरोधायी भाव स्वरूप यानी कि मिथ्यात्वादी भाव स्वरूप। कहाँ से मोक्ष देगा सोचो। अगर कर्म मिथ्यात्वादी भाव स्वरूप है तो वो मोक्ष के कारण को तोड़ देगा, मोक्ष का कारण होने ही नहीं देगा। सम्यकत्व प्रतिबंधक कर्म मिथ्यात्व जिन देवे कह्યું। सम्यकत्वને પ્રતિબંધ કરનારું છે કર્મ એ મિથ્યાત્વ છે. એના ઉદયથી જીવ મિથ્યાત્વી બને તેમ જાણવું. એના ઉદયથી જો કર્મ બંધનો ઉદય આવ્યો તો જીવ અવશ્ય મિથ્યાત્વી છે. કારણ કે કર્મ બંધ એનો અર્થ કે તમારું મિથ્યાત્વ છે તો તમારા કોઈ પણ કર્મનો બંધ ચાલુ રહેશે. કર્મનો બંધ થવો જો બંધ એને જ થાય જેને સમ્યક દર્શન આવ્યું છે, બરાબર. જે સમ્યક દર્શની છે એને જ કર્મબંધ બંધ થશે. બાકી તો કર્મબંધનો ઉદય એને ચાલુ જ રહેશે જેને મિથ્યાત્વ સત્તામાં છે અથવા ઉદયમાં છે કે સત્તામાં છે. જેને મિથ્યાત્વ જ છે એને અવશ્ય કર્મબંધ. એટલે જ અભવી જીવ ક્યારેય પણ મોક્ષ જવાના નથી, કારણ કે એને મિથ્યાત્વનો જ ઉદય છે. એટલે એ કોઈ પણ કર્મ એને બંધ જ થવાનું છે, બરાબર. કોઈ પણ કર્મ એને બંધ થવાનું, જાતિ ભવ્ય કોઈ પણ કર્મ એને બંધ થવાનું છે. કારણ કે એ લોકોને મિથ્યાત્વનો ઉદય હંમેશા માટે રહેવાનો છે. એમ જ્ઞાન પ્રતિબંધક કર્મ અજ્ઞાન જીન દેવે કહ્યું. જ્ઞાનનો પ્રતિબંધ કરનાર પણ કર્મ છે. કર્મ એ અજ્ઞાનીને જ હોય, અજ્ઞાનીને જ કર્મબંધ હોય, કારણ કે મિથ્યાત્વીને જ કર્મબંધ હોય. મિથ્યાત્વી સિવાય કર્મબંધ હોતું નથી, બરાબર. એટલે સમ્યક દર્શનની કર્મ કરે છે પણ કર્મનો ઉદય છે પણ એને કર્મનો બંધ નથી. બહુ સરસ સમજી લેજો. મિથ્યાત્વીને ક્યારેય પણ કર્મનો બંધ ના પડે એવું નહીં બને, અને સમ્યકત્વીને ક્યારેય પણ કર્મનો બંધ થવાનો નથી. આજનું આ નોલેજ બહુ જરૂરી છે સમજવા માટે કે અત્યારના જો તમારી અંદર એક વખત તમને સમ્યક દર્શન આવી ગયું અને જો ભવગણતરી શરૂ થઈ ગઈ તો સમજજો કે કોઈ પણ કર્મનો ઉદય તમને હવે નવું કર્મ બંધ કરશે નહીં. એટલે આ પ્રતિક્ષણ કર્મ બંધ બાંધી રહ્યા છો એ સમ્યક દર્શન માટે નથી. સમ્યક દર્શની જીવ કર્મને છોડે જ છે. ઉદયમાં આવનાર કર્મોને પણ છોડે જ. ભલે વ્યવહારથી કર્મ કરતો હોય, તમને દેખાય કે આ સંસારી આ જીવ આ નવું કર્મ બાંધી રહ્યો છે. જેમ કે પ્રભુ મહાવીરના ભવમાં જ્યારે એમણે વિશ્વભૂતિ અણગાર તરીકે આટલા જે વ્રત તપસ્યા કરી હતી ત્યારે એમનું સમ્યક દર્શન હતું અને જતું રહેલું હતું. પણ એક વખત સમ્યક દર્શન આવી ગયું હતું અને એ ભવ ગણતરીના પાઠમાં હતા. એટલે જેટલા પણ 27 ભવ થયા છે એ બધા જ કર્મને ઉદયના કારણે થયા છે. ધ્યાન રાખજો. એમને જેટલા બંધ આયુષ્યના ઉદય બાકી હતા એ થયા છે. એટલે એ કોઈ પણ કર્મ એમણે એ વખતે 7મી નારકીનું પણ જો કર્મ બાંધ્યું હોય તો પણ એ માત્ર ઉદયના કારણે એમણે કોઈ કર્મ બંધ કર્યો નથી. એમણે નવો કોઈ કર્મ બંધ કર્યો નથી. વિશ્વભૂતિ અણગારના ભવમાં ત્રિપુરુષ વાસુદેવનો પણ કર્મ બંધ તેમણે એ ભવમાં નથી કર્યો. એમને પહેલેથી જ
એ આયુષ્યનો ઉદય નિશ્ચિત હતો, ભવગણતરીમાં જ નિશ્ચિત હતો. જો મજાની વાત એ છે, ફરીથી આ વાત અહીંયા સમજવા જેવી છે અને હું તમને સમજાવવા માંગુ છું. પ્રભુને જ્યારે પણ, મહાવીર સ્વામીને જ્યારે પણ ત્રીજા જ ભવમાં, સમજો, ત્રીજા જ ભવમાં આદેશ્વર દાદાએ ભરત રાજાને કહ્યું, आदेश्वर दादा ने भरत राजा को बोला, प्रभु महावीर के तीसरे ही भव में, मरीचि के भव में ही भरत राजा ने आदेश्वर दादा को पूछा कि आपके यहाँ, आपका यहाँ कोई ऐसा जीव है आपके शासन में जो तीर्थंकर आपकी तरह बनने वाला हो. और तब आदिनाथ भगवान ने ये जवाब दिया कि तुम्हारा बेटा मरीचि जो आज दूसरा वेश लेकर बैठा है, दीक्षा तो ली थी उसने मेरे पास, लेकिन वो दीक्षा छोड़कर दूसरा त्रिदंडी का वेश उसने धारण किया है, तो वो अंतिम तीर्थंकर बनेगा. तेरा बेटा भविष्य में वासुदेव भी बनेगा और चक्रवर्ती भी बनेगा और वो अंतिम तीर्थंकर भी बनेगा. तब हमको ये समझना है, देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी तक ये मरीचि के भव में प्रभु महावीर के जीव ने आगामी वासुदेव का तो कर्म उन्होंने 16 के भव में किया, 16वें भव में किया, तो वो आदिनाथ भगवान ने आने वाले भव को कैसे जान लिए? केवल ज्ञानी तो वो थे ही, वो तो जान सकते हैं, लेकिन इन्होंने, अब हम महावीर प्रभु के जीव के दृष्टि से बोले कि मरीचि ने जब अभी तक वो कर्म बंद ही नहीं किया तो उनका आगे त्रिपुरुष वासुदेव ये बनेंगे, उसका कर्म बंध उन्होंने 15वें भव में किया, तो तीसरे भव में उनके ऊपर उसका कर्म लगा ही नहीं होगा. समझ रहे हैं ना? तीसरे भव में तो उनके ऊपर अभी भी विश्वभूति अणगार के भव में जो कर्मबंध हुआ वो लगा नहीं है, तो भगवान ने बताया कैसे? उनके आत्मा पे तो वो लगा ही नहीं. लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि जब महावीर स्वामी के भव ने, जीव ने नैसार के भव में जब उन्होंने सम्यक दर्शन बांध लिया था, तब उनके ऊपर आयुष्य के जितने भी अंकोड़े पड़े थे वो एक लाइन से निश्चित हो गए. देखो यहाँ आगे आ गया है, अब उनको मात्र व्यवहार से कर्म बंद करना था. जीव सम्यक दर्शनी हो चुका है, आत्मा को ज्ञान प्राप्त हो गया. अब वो जो आगे करेंगे वो कर्म को भोगने की अवस्था आएगी, और तब उनकी यह अवस्था निश्चित हो गई कि उनको 15वें भव में वो विश्वभूति अणगार बनेंगे. तब वो 11 लाख मास खमण करके पुण्य बांधेंगे और वो 16वें भव में त्रिपुरुष वासुदेव के रूप में उसको खर्च कर देंगे. बराबर? तो ये उनका 15वां भव विश्वभूति अणगार का, 16वां त्रिपुरुष वासुदेव का, अंतिम 27वां तीर्थंकर का, ऐसे सारे निश्चित तभी हो गए थे. और वो निश्चित हो गए थे, उसके अंकुड़े पड़ चुके थे, चाहे वो कर्म बाद में करे, लेकिन इतने ही भव में उनके जो सम्यक दर्शन आने से पहले जितने कर्म थे वो सबका एक विभाजन हो गया था. तो ये बात निश्चय से कहा जाएगा कि कर्म बंद नैसार के भव में आने के बाद प्रभु महावीर जीव ने कोई कर्म बंद नया नहीं किया है. एक बार सम्यक दर्शन आ जाए उसके बाद जीव, सम्यक दर्शनी जीव कोई नया कर्म बंद नहीं करता. उसी की गाथा हमने थोड़ी देर पहले ही शब्द आए, मैं आपको फिर से वो गाथा सुनाती हूँ. समझिए, बहुत अच्छी गाथा है और ये सब हमको समझना चाहिए. बस इसको इस रूप में हमें समझना चाहिए, उसका भाषांतर इसी रूप में होना चाहिए. बराबर? विद्वत जनो भूतार्थ तजी. अब देखो वो विद्वत हो चुके हैं, उनको ज्ञान चढ़ गया है, वो सम्यक ज्ञानी बन गए और उन्होंने भूतार्थ को तज दिया नैसार के भव में कि अब मुझे कोई भूतार्थ नहीं चाहिए, कोई संसारी कारण नहीं चाहिए, कोई संसार में भटकने का कारण नहीं चाहिए. तब उनको सम्यक दर्शन हो गया, वो विद्वान बन गए. अब उन्होंने भूतार्थ तो तज दिया, लेकिन जो आत्मा के ऊपर कर्म अंकोड़ा पड़ा था आयुष्य का, कि इतना आयुष्य उनको निकाचित है और जरूरी है, तो व्यवहार से तो उनको वो भव करने ही पड़ेंगे.
तभी निश्चित हो गया था कि वो 27वें भव में तीर्थंकर बनी, तभी निश्चित हो गया था कि उनका 15वां भव विश्वभूति का होगा, 16वां भव उनका इसका होगा, त्रिपुरुष वासुदेव का होगा, उसके बाद वो 7वीं नारकी में जाएगा, उसके बाद वो सिंह बनेंगे, उसके बाद वो वापस 4थी नारकी में। ये सारा निश्चित नैसार के भव में ही हो गया था। और अब नैसार के भव में सम्यक दर्शन विद्वत जन बने हुए उस नैसार के जीव ने भूतार्थ को त्यज दिया और अब व्यवहार में वर्तन शुरू कर लिया, क्योंकि 27 भव यानी एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम, उतना समय उनको व्यवहार में वर्तन करना पड़ा। देखिए अब वो इतना समय व्यवहार में वर्तन कर रहे हैं, कर्म क्षय का विधान तो निश्चित है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, पण कर्म क्षयનું विधान छे, समझाયું? अब उनका विधान कौन सा है? मात्र कर्म क्षय का। अब वो कर्म क्षय करना है उनको, हर एक भव में अब कर्म क्षय ही करना है। प्रत्येक पहला भव नैसा, दूसरा भव, तीसरा भव मरीचि, चौथा भव, 5वां भव, हर एक भव में वो कर्म क्षय करे हैं, कर्म क्षय कर रहे हैं, कोई नया कर्मबद्ध नहीं पड़ रहा है। 27 के 27 भव उनके मात्र कर्म क्षय, पण कर्म क्षयનું विधान, उनका विधान मात्र कर्म क्षय। तो परमार्थ आश्रित संत ने, अब वो जो परमार्थ पा गए हैं वो अंदर से मन से संत बन चुके हैं, उनको मात्र कर्म क्षय का ही विधान है। सम्यक दर्शन आ जाए ना, फिर जीव को मात्र कर्म क्षय का विधान। आप ये समझिए, बस आप एक बार कर्म क्षय, एक बार आप संत बन जाइए, आप मात्र कर्म क्षय की भूमिका में आ जाओगे, कोई नया कर्म बंध नहीं होगा, मात्र कर्म क्षय की ही भूमिका। बहुत अच्छा समझना है बस ये गाथाओं से हमको। अब ये सीधे सिमंदर साहब, हाँ बोल। કર્મક્ષય એ સમજો, હા. ખબર નથી કે આપણે એસી નથી તો કોઈ પણ કર્મ મોક્ષ ફિક્સ એમ. હા, મોક્ષ નક્કી છે એમનો, મોક્ષ નૈસારના ભવમાં જ નક્કી છે કે આ 27 ભવ જાય એટલે મોક્ષ, કારણ કે હવે માત્ર કર્મક્ષયના પાઠમાં આવી ગયા છે। કોઈ કર્મ, આપણે કોમન માણસની જ વાત કરું છું હું, કોમનની જેમ ભગવાન કોમન જ હતા નૈસારના ભવ સુધી, નૈસારના ભવ સુધી ભગવાન કોમન જ હતા। નૈસારના ભવ સુધી કોઈને ખબર નહીં, મરીચીના ભવ સુધી, નૈસારનો ભવ, બીજો ભવ, ત્રીજા ભવ સુધી કોઈને ખબર નથી કે આ તીર્થંકર છે, બરાબર? ભગવાને કીધું એટલે ખબર પડી, બાકી કોઈને ખબર હતી મરીચીના ભવમાં કે આ તીર્થંકર છે? એ તો સામાન્ય માણસની જેમ આજે આદિનાથ ભગવાન પાસે દીક્ષા લઈને તમારે છોડવી પડે તો તમે એને શું પુણ્યશાલી કહેશો? આદિનાથ ભગવાનના હાથે દીક્ષા લઈને તમારે છોડવી પડે તો તમે એને સારી ગણશો? ના, વિચારો તો પણ એ ભાવિ તીર્થંકર છે, બરાબર? એ ભાવિ તીર્થંકર છે, એટલે ભાવિ તીર્થંકર પણ આવા ત્રિદંડીના વેશમાં જાય તો નવાઈ નહીં, દીક્ષા છોડીને બહાર નીકળે તો આશ્ચર્ય નહીં પામવાનું આપણે, કારણ કે એ કર્મ ક્ષયના પાઠમાં છે, એમના બધા જ કર્મોનો ક્ષય ચાલુ છે, હવે કોઈ નવો કર્મબંધ નથી કરતા, એટલે તો ભવ ગણ્યા ને, ભવ ગણતરીનો આ તો ફાયદો છે બેન। જ્યારે ભવ ગણતરી સમ્યક દર્શન આવે એટલે ભવ ગણતરી ચાલુ થાય, ને જ્યારે ભવ ગણતરી ચાલુ થાય ત્યારે તમે કર્મ બંધનથી બહાર છો, બરાબર? એટલે હવે સમજી જ લેજે, મોક્ષની ઈચ્છા છે ને તને? આ સંસારમાં પાછા આવવું નથી ને? બસ, તો હવે કર્મ બંધ નથી થઈ રહ્યા, એટલે હવે આપણે કોઈ નવા કર્મ બાંધવાની ઈચ્છા આવતી હોય તો પણ ત્યાગી દે। આપણે એમ સમજવાનું આવી ઠીક છે, આ ભોગવલી ચાલે છે, ભોગાવલી ચાલશે ત્યારે આ ભગવાન જેવા ભગવાન મરીચીનો ભવ બી ભગવાનનું શરણું છોડીને ત્રિદંડીમાં ગયા, ભોગાવલી આવી એટલે આવું ભોગાવલીથી કંઈ થાય ને તો પણ એ ભોગાવલીનું નિમિત્ત છે, અંદરથી આત્મા જ્ઞાની થઈ ચૂક્યો છે અને એને મોક્ષ જ જોઈએ છે, આટલું સમજી લેવાનું।
બરાબર. આજે બહુ સરસ ગાથા આવી નહીં? 5 જ મિનિટ છે. હા, તો પાછી તો હું તો આવું જ છું. તારે આવવું તો આવી જજે, કારણ કે હું તો હવે આજ થોડા થોડા કહીને પૂરા નહીં કરું ને તો આ પૂરું નહીં થાય. પાછળથી જોઈ લે છે ને? હા તું પાછળથી જોઈ લે છે ને? હા હા હા, બસ બસ. તો હું થોડું લઈ જ લઈશ. હા, બીજું અડધો પોણો કલાક લઈ જ લઈશ. અડધો. હા હા હા. એટલે પૂરું થાય તો આવી જ જજે. હા હા, કારણ કે ટોપિક બહુ સરસ છે અને પૂરું થવું જ જોઈએ, પછી અધૂરું છૂટે નહીં ચાલે. હા ને? આવો. હવે કર્મ પોતે જ બંધ સ્વરૂપ છે. કર્મ એ બંધ સ્વરૂપ છે, બરાબર. પણ જે જ્ઞાની થઈ ગયો છે એને કર્મથી એ बांधी नहीं सकतो. जो कर्म खुद बंद स्वरूप है, लेकिन जो ज्ञानी हो चुका है ना, उसको कर्म बांध नहीं सकता, उसको उसे छोड़ना ही पड़ता. ते सर्वज्ञानी दर्शी पण निज कर्म रज आच्छादने संसार प्राप्त न जाणतो, ते सर्व रीते सर्वने. सो सव्वणाण दरीसी कम्मरेण नियेणा वच्छणो संसार समावरणोण विजाणदी सवदो सवम. स सर्वज्ञानदर्शी कर्म रजसा निजे नावच्छन संसार समापन्नो न विजानाति सर्वतः सर्वम. ते आत्मा स्वभाव से ही सर्व को जानने वाला हो चुका है, देखने वाला हो चुका है. फिर भी देखो, सम्यक दर्शन आने के बाद भी आत्मा ज्ञानी हो गया, लेकिन आप सब कुछ देख नहीं सकते हो, क्योंकि व्यवहार से आपको बाकी के भव निकालने बाकी है. आपको अभी भी और बहुत सारे भव गुजारने बाकी है, बराबर. देखो, पहले ही भव में नैसार को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, लेकिन 27 भव तक, 26 भव तक वो सर्वज्ञानी सर्वदर्शी उसकी आत्मा हो गया था, सम्यक दर्शन आ गया था. लेकिन फिर भी वो आत्मा स्वभाव से अपने स्वभाव से सम्यक होने के कारण सर्व को जानने वाला, सर्व को देखने वाला हो गया था. लेकिन फिर भी अपने जो कर्ममल बाकी थे ना, जो भवगण गिनती के 27 भव के, वो कर्ममल से व्याप्त होने के कारण उनका जीव संसार समापन्न हुआ. मतलब उसको अभी भी 27 भव तक उन्होंने संसार को पाया, तो वो प्राप्त करने वाला हो गया. ये कारण से वो कुछ भी उसको केवल ज्ञान, केवल दर्शन नहीं हो सका, बराबर. वो बद्ध तो हो गया है, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितने भव बाकी, पूर्व भव में क्या किया है, वो सब उसको नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी भी ये व्यवहार से सर्व संसार को उसको अभी भोगना बाकी है. देखो, अभी वो कर्म बंध से बाहर आ गया है, पर कर्म उदय से वो नहीं छूटा है. यहाँ समझना क्या है पता है? कर्म बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता, अगर कर्म की ये चारों स्थिति बंद हो जाएगी ना, तो ही आप केवल ज्ञान को प्राप्त करोगे. कर्म, बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता, ये चारों जब तक बंद नहीं होगे, तब तक आप कर्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हो. ठीक है, आओ. तो जब तक कर्म का बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता बंद हो गया, बंद. देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, वो जीव ने कर्म बंध को बंद कर दिया, पर उदय उदीर्णा बाकी है. कर्म की जो 4 थियरी है, कर्म बंध, कर्म उदय, कर्म उसकी उदीर्णा और उसकी सत्ता. तो कर्म बंध तो करना बंद हो गया है अब, लेकिन उदय बाकी, उदीर्णा बाकी, और सत्ता में से उस सबको निकालना बाकी. बराबर, समझ में आ गई? तो कर्म का बंद हो चुका है, क्योंकि भव गिनती शुरू हो गई, आप सम्यक दर्शनी हो गए. अब बाकी के सारे उदय में आएंगे और धीरे धीरे उसको आप बाहर
निकालोगे। समत्त पड़ीणी बद्धम इच्छतम जिणवरेहिम परिकहियम तस्सोदयन जीवो मिच्छा दिठिति जाणादवो नाणस पड़ीणी बद्धम अनाणम जिणवरेहिम परिकहियम तस्सोदयन जीवो अनाणी होदीणादवो चारित्र पड़ीणी बद्धम कसायम जिणवरेहिम परिकहियम तस्सोदयन जीवो अचरितो होदी नादवो सम्यकत्व प्रतिनिबद्धम मिथ्यात्वं जिनवरे परिकथितं तस्योदयेन जीवो मिथ्यादृष्टिरिति ज्ञातव्य ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धम अज्ञानं जिनवरे परिकथितं तस्योदयेन जीवो ज्ञानी भवति ज्ञातव्य चारित्र प्रतिनिबद्ध कषायो जिनवरे परिकथितं સારિકા જો એ પાઠ આવ્યો, હું કહું છું ને રોજ કે આપણે ભવગણતરી પછી માત્ર કર્મ બંધ થતો જ નથી, ખાલી ઉદય અને સત્તા જ હોય છે. ભવગણતરી પછી કર્મ બંધ નથી થતો, એ પાઠ આવી ગયો ગાથા સાથે. એટલે ભવગણતરી ચાલુ થાય પછી કર્મ બંધ થતો નથી. ખાસ સાંભળજો આનો પછી વિડીયો પાછળથી, ભૂલતી નહીં. હા, ચારિત્ર प्रतिनिबद्ध कषायो जिनवरे परिकथितः तस्योदयन जीवो चारित्रो भवन्ति ज्ञातव्य सम्यकत्व प्रतिबंधक कर्म मिथ्यात्व એવું જીનદેવે કહ્યું. સમ્યકત્વને પ્રતિબંધક, સમ્યકત્વને પ્રતિબંધ કરનારું કર્મ જ છે એ, અને એ મિથ્યાત્વ છે. એટલે કર્મ એ મિથ્યાત્વ છે અને કર્મ એ સમ્યકત્વનો પ્રતિબંધ કરનારું છે. ઉસકે ઉદય સે જીવ મિથ્યાત્વી બને એમ જાણવું. એટલે કર્મના ઉદયથી જીવ મિથ્યાત્વી બને છે एम ज्ञान प्रतिबंधक कर्म अज्ञान जिन देवे कयु. बराबर इसी प्रकार से ज्ञान का प्रतिबंध करने वाला अज्ञान, अज्ञान ज्ञान का प्रतिबंध करने वाला है. एना उदय थी जीव अज्ञानी बने एम जाणવું. मतलब जब ज्ञानावरण कर्म का उदय हो तब जीव अवश्य अज्ञानी बनेगा. बराबर, ऐसा समझना है. कर्म के उदय से जीव अज्ञानी बनता है. चारित्र को प्रतिबंध करने वाला कषाय जिन देवे कयु. और कषाय के उदय से जीव चारित्रहीन बनता है. देखो, खास 3 चीज़ को बोला है यहाँ कि मिथ्यात्व के उदय, फिर अज्ञान का उदय और कषाय का उदय. जो हम बोलते हैं ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग. अब ध्यान से सुनिए. मिथ्यात्व का उदय आपको अज्ञानी, वो मिथ्यात्व का उदय आपको क्या कराएगा? सम्यकत्व को रोकेगा, रोकेगा ना, सम्यक दर्शन नहीं कराएगा. फिर अविरति का योग आपको अविरति रहना है, अव्रत में रखना है, कोई देश वृत्ति भी नहीं कराना है, तो वो चारित्र के उदय को रोकेगा. फिर प्रमाद, वो भी चारित्र के उदय को रोकेगा. कषाय, वो भी चारित्र के उदय को रोकेगा. समझ में आ रहा है? दीक्षा नहीं लेने का कारण क्या है? नहीं ले सकने का. और योग, योग का उदय आपको आपके चारित्र को रोकेगा. योग का भी, मनोयोग, वचन योग का योग, वो तो अज्ञान को भी रोकेगा. मतलब वो आपको ज्ञान, आपके ज्ञान को भी रोकेगा. बराबर, क्योंकि योग में मनोयोग आ गया है. मनोयोग, वचन योग, का योग, तीनों आ गया. तो मनोयोग वही हुआ कि आपका हर चीज़ का, संसार का मन करेगा तो आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर, आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे. जैसे ही आप अपने मन में इच्छाएं करोगे, पर का राग करोगे, वैसे आत्मा का राग चला जाएगा. पर का आश्रय लोगे तो आत्मा का आश्रय चला जाएगा. तो यही ज्ञान है कि हमें पर का ज्ञान छोड़कर स्व के ज्ञान में रहना चाहिए. बराबर. तो क्या चीज़ 3 है जो दर्शन ज्ञान चारित्र को रोकता है, ये बताया. अब उसके बाद वाली, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के कारण रूप भाव है और उससे विपरीत मिथ्यात्व का भाव.
मिथ्यात्व अविरति मिथ्यात्व का भाव सम्यक दर्शन को रोकेगा, अविरति प्रमाद कषाय योग का भाव आपके चारित्र को रोकेगा, और ये सबका अज्ञान मतलब संसार का भाव आपके ज्ञान को रोकेगा। कर्म मोक्ष के कारण रूप भावों का घातक है, इसलिए घाती कर्म बोला गया है, समझो। अब कर्म के दो विभाग कर दिया, घाती कर्म अघाती कर्म। 4 घाती कर्म है, 4 अघाती कर्म है। क्यों उसका विभाग क्यों हुआ, घाती कर्म क्यों नाम आया है? क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो तीनों मोक्ष के कारण है, वो तीनों से विपरीत जो मिथ्यात्वादी भाव है, मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कषाय योग, उसी के अंदर कार्यरत रहना ही कर्म हुआ। और ये कर्म 2 प्रकार से आत्मा का घात करता है, 2 प्रकार से। कैसे? एक है सर्वघाती, एक है अघाती, ऐसे 2 प्रकार से। तो सम्यक मिथ्यात्वादी हेतु रूप ज्ञान का घातक होने के कारण कर्म 4 कर्म को घाती कर्म कहा गया है। उसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म। देखो ये 4 को ही घाती क्यों कहा? ज्ञानावरण, क्योंकि ज्ञान को ढक रहा है। अगर ज्ञान को ढक रहा है तो अच्छी बात है, सम्यक ज्ञान तो होगा ही नहीं ना, तो सम्यक ज्ञान का घातक हुआ दर्शनावरण, वो भी श्रद्धा है, क्या सच है वो बता रहा है, तो सत्य को ढकने वाला भी तो घाती हुआ, आत्मा का घातक। उसके बाद मोहनीय यानी कि चारित्र, सारे कषाय कुचारित्र है, उसको ढकने वाला, बराबर, चारित्र को ढकने वाला, कषायों को बढ़ाने वाला, कषायों से दूर रखने वाला नहीं, लेकिन उसके नज़दीक रखने वाला, वो हुआ चारित्र में अंतराय देने वाला। और लास्ट है वीर्यांतराय। अगर आप वीर्य फोरोगे, आपके अंदर शक्ति आएगी, तो ही आप दर्शन ज्ञान चारित्र का अंतराय करने वाले कर्मों का खात्मा कर सकते हो। अगर आपके अंदर वो शक्ति नहीं है तो जो घाती कर्म है उसका आप क्षय नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये बात फिर से आई, अगर जो आत्मा वीर्यवान है, जो भव्यत्व वाला है, वो ही उसको क्षय कर पाएगा, बाकी नहीं। अभवी में वो शक्ति ही नहीं है, वो वीर्य वो फोरेगा ही नहीं, उसको उसकी वो जरूरत ही नहीं लग रही है। और जाति भव्य में तो ताकत ही नहीं है। तो अशुभ कर्म मोक्ष का कारण होता ही नहीं है, समझ लीजिएगा। अशुभ कर्म यानी कर्म ही, सारे कर्म यही मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कषाय योग सब मोक्ष का कारण ही नहीं है और मोक्ष के बाधक ही है। इसीलिए सारे निषिद्ध है, बराबर, उसको नहीं करना है। अब शुभ कर्म की बात की है, शुभ कर्म भी सर्व कर्म सामान्य में आ गया। ऐसा नहीं है कि अशुभ ही नहीं करना है, शुभ कर्म भी सर्व सामान्य में आ गया। शुभ कर्म करके अगर आप अशुद्ध भाव ही रखेंगे, कर्म शुभ कर दिए लेकिन भाव अशुद्ध है, तब भी वो मोक्ष का कारण नहीं बन सकता। इसलिए वो भी बाधकी है, इसलिए वो निषिद्ध है। अब वापस वो यथाख्यात चारित्र की बात की है, देखिए ध्यान से समझिएगा। बिना चारित्र, बिना यथाख्यात चारित्र यानी कि जावत जीव चारित्र, अब ये चारित्र अंतिम समय तक नहीं रखना है, वही आपके वचन योग और काय योग को रोक रहा है। मनोयोग तो हो गया, आपने शांत कर लिया, आपने भाव तो शुभ भाव लिए, आपको केवल ज्ञान भी हो गया है। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान होगा, देव आएंगे, भरत राजा को दीक्षा के वस्त्र दिए, आपको तुरंत दीक्षा लेनी, बराबर, और यथाख्यात चारित्र में आना ही है। क्योंकि अब बाकी के आपके वचन योग और काय योग, उसका चारित्र नहीं करोगे। अगर भागवती दीक्षा, अगर अपने पंचमहाव्रती दीक्षा नहीं लोगे, तो वचन और काया से जीव हिंसा चालू रहे और वो सम्यक दृष्टि को नहीं चलेगा आपके केवल ज्ञान को, क्योंकि कर्म परंपरा चालू है। आपको नियम में तो आना ही पड़ेगा वचन और काया से। खाली मन से हो गया घाती कर्म का क्षय, अघाती का क्षय बाकी है। शुभाशुभ कर्म धारा और ज्ञान धारा। देखिए अब सम्यक दृष्टि को 2 धारा है, एक है शुभ और अशुभ कर्म की बाकी परंपरा,
और दूसरी ज्ञानधारा, वो ज्ञानधारा में तो है ही, लेकिन शुभ कर्म की परंपरा भी बाकी है, अशुभ कर्म की परंपरा भी बाकी, क्योंकि बाकी का 16 साल तक भगवान ने जो भी पीड़ा भोगी वो बाकी है। ये तो केवल ज्ञानी की बात कर रही हूँ, हमारे भव गिनती वाले की तो यहाँ बात ही नहीं है। वो तो 27 भव, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक प्रभु घूमे, हम तो पता नहीं कितना घूमेंगे सम्यक दर्शन आने के बाद। लेकिन केवल ज्ञान के बाद भी 2 धारा है, एक शुभ अशुभ कर्म धारा, एक ज्ञान धारा। भगवान को शुभ कर्म भी मिले, अशुभ कर्म का भी सामना करना पड़ा, उनको वेदनीय कर्म भी मिले, उनको वेदना भी मिली, गौशाला ने पीड़ा दी, गोवाल ने भी पीड़ा दी, केवल ज्ञान होने के बाद तो मिली, उनके पहले भी मिली, 16 वर्ष में बहुत पीड़ा मिली। संगम देव, ये सबसे जो पीड़ा मिली वो अशुभ कर्म धारा थी, और प्रभु जो ध्यान में रहे वो शुभ कर्म धारा थी। बराबर, तो शुभ कर्म धारा अशुभ कर्म दोनों कर्म धारा भी थी, और प्रभु ज्ञान में रहे वो ज्ञान धारा थी, स्व आत्मा में से रहे वो सम्यकदर्शी रहे वो ज्ञान धारा थी। आओ, तो ये दोनों साथ में रहता है, क्योंकि आपको कर्म का उदय बाकी है, 4 अघाती का उदय बाकी है, 4 अघाती का उदय बाकी हो, तो केवल ज्ञान होने के बाद भी 4 अघाती का बाकी, पहले तो 8 बाकी, केवल ज्ञान नहीं हुआ, दीक्षा ले ली, सम्यक दर्शन तो आ गया है, लेकिन 8 कर्म का उदय बाकी। बराबर, कर्म सामान्य और ज्ञान दोनों को कोई विरोध नहीं, दोनों साथ में रह सकते, ये सामान्य कर्म है। बराबर, ये सामान्य कर्म, क्योंकि अब कर्म बंद नहीं हो रहा है। ये देखो, ये बहुत अच्छी बात, मात्र उदय है, मात्र सत्ता में पड़े वो बाहर आ रहा है और उदीर्णा हो रही है, लेकिन नया कर्म बंद नहीं हो रहा। यही महत्व की बात, आत्मा से सफाई हो रही है, आत्मा के ऊपर से कर्म की सफाई हो रही है। इस स्थिति में कर्म अपना काम करता है और ज्ञान अपना काम करता है। देखो ये स्थिति कैसी है, अगर हमको सम्यक दर्शन आ गया है, बाकी की भव बाकी है, कर्म उदय में आ रहा है, खत्म हो रहा है, कर्म अपना काम कर रहा है, ज्ञान अपना काम कर रहा है, दोनों साथ में काम कर सकते हैं। ज्ञान ये सोचता है कि भाई जितना भी कर्म शांति से आए उसको भोगो और शांति से खत्म करो। अगर कहीं विभाव में चले भी गए तो कुछ समय गए, वापस आ जाओ, सोचो कि ये मैंने गलत कर लिया है, ऐसा विभाव मुझे नहीं लाना है, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे वैराग्य चाहिए। कर्म का उदय था, ये चीज़ मांग ली, अब वो शांत हो गया है, अब मुझे ये नहीं चाहिए। उसको भी आपको विभाव समझना है कि वो दूसरा कर्म भोगते भोगते भी यही सोचना है, भोगते हुए भी, कि अब मुझे ये भोग खत्म हो जाने के बाद ऐसा कोई कर्म वापस नहीं चाहिए, नए सिरे से नहीं चाहिए। मोक्ष तो मुझे चाहिए, चाहे मैं कर्म भोग रहा हूँ, लेकिन मोक्ष चाहिए। लेकिन मोक्ष, अभी आप दोनों पाठ में चल रहे हो, समझो, दोनों पाठ में चल रहे हो, दोनों साथ में रहने में कोई विरोध नहीं है। आप ऐसा मत समझो कि ये गलत है, कोई विरोध नहीं, और वो दोनों अच्छे से अपना अपना काम करेंगे। दोनों पाठ, दोनों अपने अपने स्थिति में अपना अपना कार्य करेंगे। ज्ञान अपना कार्य करेगा और कर्म का उदय उदीर्णा अपना काम करेगा। जितने जितने अंश में शुभ अशुभ कर्म धारा हो, उतने उतने अंश में कर्म बंद होता जाएगा। बराबर, शुभाशुभ असर होगी, उतने में कर्म बंद होगा, अंश में होगा। ध्यान से सुनिएगा, जितने अंश में, मतलब वितराग, देखो वैराग्य तो आ चुका है, लेकिन कर्म का उदय हुआ, वो उदय में आप वो स्थिति में वापस चले जाएंगे जो स्थिति में वो बंधा है, वो लेशा में वापस जाओगे जो लेशा में वो बंधा है। तो वो बंधा है इसलिए कर्म बंद तो हुआ, लेकिन तुरंत वो खर भी जाएगा। जितने अंश में बंधा उतने ही अंश में वो खर जाएगा। अगर वो 6 महीने के लिए अप्रत्याख्यानी बंधा है तो 6 महीने बाद खरेगा। अगर वो प्रत्याख्यानी बंधा है तो 4 ही महीने में खर जाएगा। अगर वो संजवलन बंधा है तो सुबह बंधा, शाम को खर जाएगा। बराबर, पर ये भव में ये कर्म का जो बंध है वो जरूर खर जाएगा। जितने अंश में ज्ञान धारा होगी, मतलब ज्ञान धारा यानी सम्यक दर्शन, जितने अंश में सम्यक दर्शन होगा, अगर क्षायिक सम्यक दर्शन है तो तुरंत खर जाएगा। आप क्षायिक स्थिति, अगर आप क्षायिक स्थिति में आ गए हो तुरंत खर जाएगा। अगर आप उपशम स्थिति में हो
क्षयपशम में हो, थोड़ा कुछ समय रहेगा फिर खरेगा, उपशम में हो तो वो खरेगा नहीं, दबता जाएगा आत्मा के ऊपर। इस प्रकार से विषय कषाय के विकल्प अथवा व्रत नियम के विकल्प और शुद्ध स्वरूप का विचार सब कर्म बंध का कारण है। इसका विचार भी शुद्ध परिणति ज्ञान द्वारा धारा ही मोक्ष का कारण है, शुद्ध सम्यकत्व ही मोक्ष का कारण, इतना समझना। ठीक है, चलो अभी ख़त्म करूँ, नया टॉपिक कल लेंगे। आओ, क्या है मैं देख लेती हूँ एक बार। कर्म का ही चल रहा हो तो नहीं, ये अधिकार पूर्ण हो रहा है, अभी मैं कर लेती हूँ, थोड़ा ही है, ये अधिकार पूर्ण हो रहा है, उसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आओ, इति पुण्य पाप रूपेण द्विपात्री भूतम एकम पात्री भूय कर्म निष्क्रांतम, यानी कि शुभ और अशुभ ऐसे भेद रूप नचाने वाला कर्म, ज्ञान को भुलाने वाला कर्म और उसकी स्थिति, अपनी शक्ति से उसको उखेड़ कर ज्ञान ज्योति को संपूर्ण सामर्थ्य रहित प्रकाशित होकर ज्ञान ज्योति या ज्ञान कला, केवल ज्ञान रूपी परम कला का अंश प्राप्त करना, केवल ज्ञान रूपी ज्ञान का अंश मात्र प्राप्त सम्यक दर्शन में आता है। सम्यक दर्शन क्या है? जो संपूर्ण केवल ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान ज्योति, उसका एकमात्र अंश। इसीलिए बोला गया है, जैसे एक अंश प्राप्त किया फिर दूसरा किया चला गया, तो तीसरा किया चला गया। आपने पता ये सुना है, पहले पाठ में आ गया है, केवल सम्यक दर्शन कम से कम 9000 बार आएगा, फिर वो क्षाय शमिक सम्यकत्व में जाएगा। 9000 बार बराबर, और उत्कृष्ट से 1.5 लाख बार आता है जाता है, और फिर वो धीरे धीरे स्टेबल होता है, और धीरे धीरे करके आपके फिर भव आएंगे। भव गिनती तो आपके पहले से ही हो गई, बाकी के 9000 बार कम से कम, और बाकी के भव गिनती पूरे होने में 9000 बार कम से कम वो आएगा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख बार वो आएगा जाएगा, फिर आपको क्षायिक सम्यकत्व आएगा। बराबर, तो इस तरह से ज्ञान रूपी परम कला का अंश इकट्ठा होते होते आप केवल ज्ञान तक पहुँचो। बराबर, इसीलिए ऐसा कहा है कि ज्ञान ज्योति ने केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा शुरू कर दी, एक अंश इकट्ठा करना शुरू कर लिया है। ज्ञान ज्योति ने केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा शुरू कर ली, और वो एक एक करके उसको इकट्ठा कर रहा है। बराबर, तो पुण्य पाप रूपी 2 पात्र में हुआ कर्म जब एक पात्र हो जाए, तब वो रंगभूमि से बाहर निकल जाएगा। बिन पात्री हो जाए तब पुण्य पाप, पुण्य से आप एक में आए, पुण्य बंद कर दिया है, पाप बंद कर दिया है, पुण्य का शुरू रखा है, ताकि आपके भोग खत्म होते जाए, और उसके बाद वो भी बंद करोगे तो ही आप रंगभूमि से बाहर जाओगे। बराबर, कर्म सामान्य रूप में एक ही है, फिर भी उसको पुण्य पाप ऐसे 2 प्रसंग में इसीलिए बांटा कि आप पुण्य कर्म ज़्यादा करो, पाप कर्म कम करो, और धीरे धीरे वो पुण्य कर्म भी खत्म करते जाओ, और आप पूरे एक पात्री हुए, अब धीरे धीरे रंगभूमि से बाहर हो गए। आश्रय कारण रूप सवाद सुभेद विचारी, गिने 2 न्यारे, पुण्य रूपाप शुभा शुभ भाव नी, बंध भय सुख दुख करारे, ज्ञान भय 2 एक लखई बुध आश्रय, आदि समान विचारे, बंध के कारण है 2 रूप, इन्हें तजी जिन मुनि मोक्ष पधारे। दोनों को वो बंध का कारण जाने, पुण्य कर्म को भी बंध का कारण जाने, पाप कर्म को भी वो बंध का कारण जाने, और दोनों को तजे, और वो जिन बने, वो मुनि जिन बने और मोक्ष पधारे। तो इस प्रकार से समय सार की कुंदाचार्य जी
देव प्रणीत श्री समय सार के परम आगम की श्रीमद अमृत चंद्राचार्य देव विरचित आत्मख्याति नाम की टीका में पुण्य पाप प्ररूपक ये तीजा अंक समाप्त हुआ। अब आश्रव अधिकार चौथा अंक आएगा, वो हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपकी 163 गाथा हो चुकी है, बहुत सारी है, 400-500 के ऊपर की गाथा है। हम देखते हैं कितनी कितनी होगी, लेकिन पूरी अवश्य करेंगे। बराबर बराबर जितना होगा उतना यहाँ से करेंगे, बाकी इंडिया जाके ये पहले पूरा करेंगे, फिर हम अपना भगवती सूत्र शुरू करेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप 163वीं गाथा पे तो आ गए, 15-20 गाथा रोज की हो जाएगी तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, जय जी।